آج کا ہمارا ویڈیو تقلیدی طب المعروف قانون مفرد اعضاء کے ان استادوں کے نام ہیں جنہوں نے قصداً یا پھر سہواً طب کو غلط ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس وقت طب سے جو ہماری مراد ہے وہ مکمل طب سے نہیں ہے، بلکہ طب کا ایک شعبہ تشخیص سے ہے، اور تشخیص میں بھی نبض شناسی سے اس وقت ہماری مراد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تقلیدی طب کے نام پہ پچھلے 70 سالوں سے جو تقلیدی استاد ہیں وہ غلط ڈھنگ سے نبضیں سکھا رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، کیونکہ کچھ کام سہون بھی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو صحیح سمجھ کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، دوسروں تک منتقل کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے، غور سے آپ سنیے گا اس کو۔ ایک بار ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، میں نے اس کی نبض دیکھی، اور میرا ایک دوست جو طبیب تھا، میں نے اس کو بتایا اس کی نبض جو ہے عضلاتی اعصابی ہے، 2 نمبر ہے، کیونکہ یہ 2 انگلیوں پر محسوس ہو رہی ہے، اس لیے 2 نمبر ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ذرا میں بھی دیکھوں۔ تو پھر اس نے اس بندے کی نبض چیک کی اور اس نے کہا کہ آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں، اس کی نبض 2 نمبر نہیں ہے بلکہ 1 نمبر ہے، کیونکہ اس کی نبض 1.5 انگلیوں تک محسوس ہو رہی ہے، 2 تک نہیں ہو رہی۔ ہم نے کہا کہ بھائی 2 تک ہو رہی ہے، اس نے کہا نہیں 1.5 تک ہو رہی ہے۔ تو دونوں میں یہ بحث چھڑنے لگی۔ بیچ میں دیکھیں ایک بات اور بتا دیں، کیونکہ کئی فرقے ایسے ہیں تقلیدی طب میں جو کہ نبضوں کا جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس میں 1، 2، 3 نمبر جو نبض ہیں اس میں مقام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کبھی آپ کہیں کہ اس میں جو ہے آپ اس کا شرف کیوں نہیں دیکھتے، شہوق کیوں نہیں دیکھتے، صرف لمبائی ہی کیوں دیکھتے ہیں، اس لیے یہ بات بیچ میں کلیئر کیے دیتا ہوں۔ تو خیر، تو کافی ٹائم ہو گیا دونوں میں بحث کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسا ہے، ان کے کوئی دوست ہیں جو کوئی ایک استاد الحکمہ ہیں تقلیدی طب کے کوئی، اور ہزارہ جو طبیب ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو ان سے وہ بہت لمبے ٹائم تک نبض سیکھ کے آئے ہیں، سالوں سال ان کی خدمت کر کے انہوں نے نبض سیکھی ہے تقلیدی طب کی۔ تو بولے انہیں بلائے لیتے ہیں۔ اب ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ میں بولا بھائی اب اتنے بڑے استاد الحکمہ کی جس بندے نے خدمت ہو، بھائی وہ تو بالکل معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، جو ہماری گھنٹوں سے بحث ہو رہی ہے وہ ذرا سی دیر میں جو ہے حل کر دیں گے۔ تو کل ملا کے انہوں نے فون کیا، فون کرنے کے کچھ دیر بعد وہ صاحب آئے۔ آنے کے بعد بولے بھائی معاملہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا صاحب یہ مریض ہے اور اس کی نبض مجھے 2 انگلیوں تک محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے نبض 1 نمبر ہے، کیونکہ یہ بول رہا ہے کہ 1.5 انگلی تک ہے نبض۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے، اور میں تو استاد الحکمہ کے پاس جو ہے کچھ سال انہوں نے بتایا کہ اتنے سال خدمت کی ہے میں نے، اور ان کے پاس نبض سیکھی ہے جو ہے تقلیدی طب کی۔ بولے ذرا دیر میں بتا دوں ہمیں کیا ہے نبض کیا نہیں ہے۔ تو مریض کو بلایا، اسی مریض کو، تو ان صاحب نے نبض دیکھی اور دیکھ کے کہا کہ بھئی نہ تو اس کی نبض عضلاتی اعصابی ہے اور نہ ہی اس کی نبض اعصابی عضلاتی، آپ دونوں غلط ہیں، بلکہ اس بندے کی جو نبض ہے وہ عضلاتی غدی ہے، کیونکہ یہ نہ تو 2 تک محسوس ہو رہی ہے، نہ ہی 1.5 انگلیوں تک محسوس ہو رہی ہے، بلکہ یہ نبض 2.5 انگلیوں تک محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ نبض طویل ہے، اور جو نبض طویل ہوتی ہے اور اوپر ہی ہوتی ہے وہ عضلاتی غدی نبض ہوتی۔ تو صاحب مقصد کہنے کا یہ تھا، جہاں پہلے 2 لوگ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے تو تیسرے کو بلایا تھا شاید معاملے کو سلجھا دیں، لیکن معاملہ سلجھنے کے بجائے اور زیادہ الجھ گیا۔ تو پہلے 2 لوگ ہی بحث کا حصہ بنے تھے، اب وہ تیسرے جو تھے وہ بھی اس بحث کا حصہ بن چکے تھے۔ اب بحث کرنے والے 3 ہو گئے۔ اب تینوں میں بہت دیر سے چل رہی تھی بحث۔ وہ کہہ رہا تھا 1.5 انگلیوں تک محسوس ہو رہی ہے، اب ہم کہہ رہے تھے 2 تک محسوس ہو رہی ہے، وہ بول رہا تھا نہیں جی 2.5 تک محسوس ہو رہی ہے۔ اب بار بار مریض کی نبض دیکھیں، مریض کا بھی ہماری شکل دیکھے یوں، کبھی اس کی دیکھے یوں، مریض پریشان، بولے یار کیا چیز ہیں آپس میں، بے وقوفوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں صاحب۔
बोले मैं तो मरीज़ बन के आया था और आने के बजाय मरीज़ किसी और चीज़ का था और बन किसी और चीज़ का गया, उसे ये गुमान हुआ। तो काफ़ी देर जब बहस होते हुए हो गई, एक साहब गुज़र के जा रहे थे, उन्होंने कहा, हमारी बहस देखकर वो रुके और रुकने के बाद कहा कि भाई मुझे महसूस होता है कि आप लोग तबीब हैं और आप फ़न नब्बाज़ी को लेकर के किसी चीज़ पर बहस कर रहे हैं। हमने कहा जी मोहतरम, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा, हम नब्ज़ को लेकर ही बहस कर रहे हैं। बोले क्या इजाज़त अगर हो तो मैं आपका मसला सुलझा दूं। हमने कहा क्या आप क़ानून मुफ़रद अज़ा जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं मुफ़रद अज़ा भी जानता हूँ। हमने कहा साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को आपने पढ़ा है? बोले थोड़ा बहुत पढ़ा। हमने कहा थोड़ा बहुत पढ़ने वाला कुछ नहीं बता सकता। बोले क्यों? हमने कहा ये जो साहब हैं ये पूरा पढ़ के आए हैं, उस्तादुल हुक्मा के साथ पास में नब्ज़ सीख कर आए हैं, जब ये नहीं बता सके तो आप क्या बताएंगे? तो हमने उनसे कहा मेहरबानी करके आप तशरीफ़ ले जाइए, आप हमारे मसले को नहीं सुलझा सकते, बजाय सुलझाने के और उलझा देंगे। पहले हम 2 लोग इस डिबेट में थे, अब तीसरा आ गया और आप चौथे शामिल होने वाले। तो क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि जो साबिर साहब को जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तबीब नहीं हैं, वो तिब नहीं जानता, तो हम इसलिए उन्हें काफ़ी हकीर जान रहे थे। हम सोचा कि बेकार में आ गए उठ के, इन्हें क्या पता क्या है कानून है, क्या तिब है। तो फिर उन्होंने कहा देखो किसी भी बंदे को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। हो सकता है जिसको आप इतना हकीर जान रहे हैं वो मरीज़ की नब्ज़ देखे बगैर आपका मसला सुलझा दे। हमने कहा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि पेशेंट की नब्ज़ देखे बगैर मसला सुलझ जाए? बोले बिल्कुल सुलझ जाएगा, हो सकता है सुलझा दें हम, क्योंकि हमने भी कानून को पढ़ा है और असली कानून को पढ़ा है। अब आप जिस कानून की बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक है या नहीं इसकी तो बाद में हम वजाहत करेंगे, लेकिन असली कानून को पढ़ा है, हो सकता है सुलझा दें। तो उन साहब हम लोग जब एग्री हो गए इस चीज़ के लिए तो उन्होंने कहा कि एक काम करें, आप तीनों हजरात अपना अपना एक हाथ आगे बढ़ाएं। तो हमने इस तरीके से हाथ को आगे बढ़ा दिया, इस तरीके से। अब उन्होंने हमारा हाथ इस तरीके से, तीनों का एक एक हाथ लिया, इस तरीके से देखा, मतलब ये मुस्कुराए और कहा कि आप कहते हैं उस मरीज़ की नब्ज़ 2 उंगलियों पर तक महसूस होती है, आप कहते हैं नहीं जी 1.5 तक होती है, और ये फरमाते हैं 2.5 तक होती है, इसलिए अज़लाती गुद्दी है। बोले अल्लाह के बंदो ज़रा आप ये तो सोचें, आप तीनों लोग इतनी देर से नब्ज़ पे झगड़ रहे हैं, क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आपकी उंगलियों का साइज़ क्या है? तो वो मुझसे बोले जब आपकी उंगलियों का साइज़ इतना है कि आपको वो पेशेंट की नब्ज़ जो 2 उंगलियों तक महसूस होती है, तो जिन्हें 1.5 तक महसूस होती है उनकी उंगलियां आपसे पतली हैं, तो जाहिर है जब उनकी उंगलियां आपसे पतली हैं तो जो नब्ज़ आपको 2 उंगलियों तक महसूस हो रही है उन्हें 1.5 तक, जिनकी उंगलियां पतली हैं उन्हें 2.5 तक महसूस होगी। हम बोले हाँ भाई अब बात तो अक्ल की है। तो बोले अब ये जो साहब हैं जिन्हें 1.5 तक महसूस हो रही है, इनकी उंगलियों का साइज़ देखें, इनकी उंगलियां आपसे मोटी हैं। तो जब इनकी उंगलियां का साइज़ आपसे मोटा है तो जो नब्ज़ आपको 2 उंगलियों तक महसूस हो रही है, तो मोटी उंगलियों वाला जब नब्ज़ देखेगा तो वो 1.5 तक होगी। हम बोले हाँ यार बात तो बड़े कायदे की है। तो कहने लगे कि सबसे पहले अपने पैरामीटर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब आपके पैरामीटर ही दुरुस्त नहीं होंगे तो आप किस तरीके से नब्ज़ देखेंगे? तो फिर उन्होंने बताया कि नब्ज़ का जो ताल्लुक़ है 1 उंगली तक 2 उंगली तक, इससे नब्ज़ का कोई मतलब नहीं है नब्ज़ की लंबाई नापने के लिए। नब्ज़ की जो लंबाई नापी जाती है उसका तो अलग ही कानून है, और ये कानून आज से 1800 साल पहले
जालिनूस ने दुनिया के सामने पेश किया था। और आज से तकरीबन 1000 साल पहले शेखुल रईस ने इसकी तायीद भी की थी। और शेखुल रईस ने ये कानून आज से 1000 साल पहले जो है लिखा था, जो कि देखें ये है वो कानून। अल कानून मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, नज़दीक से देखें अल कानून, ये है वो कानून जो आज से 1000 साल पहले शेखुल रईस ने लिखा था। ये असली कानून है जिसको 600 सालों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में निसाब में दाखिल किया गया था, निसाब में पढ़ाया गया था, सिलेबस में। और फिर उन्होंने बताया कि कानून तो वही होता है जो काबिल तकरार होता है, जिसको अक्ल कबूल नहीं करे वो कोई कानून नहीं होता है। कानून हमेशा वही होता है जो काबिल तकरार होता है। अब आप ये कहते रहें कि जिसकी नब्ज़ 2 उंगलियों तक महसूस होती है वो नब्ज़ जो है लंबाई के एतबार से नॉर्मल होती यानी मोतदिल है, जिसकी 2 से बढ़ गई तो वो जो है तवील नब्ज़ कहलाई, और जिसकी 2 से घट गई तो वो कसीर कहलाई। अब आप इस चीज़ पे तो बहस करते रहें, लेकिन अगर कोई सामने वाला ये पूछ ले कि भाई 2 उंगलियों का जो आपने नाप बताया है वो उंगलियों का क्या साइज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर आप खामोश हो जाएंगे। तो ऐसी बात जिसका आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, उस पे आप बहस करके उसको कानून नहीं कह सकते। कानून उसी चीज़ को कहते हैं जो काबिल तकरार होती है। तो देखें, हमने अज़लाती असाबी नब्ज़ की लंबाई को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लंबाई जो इस तरीके से नापते हैं वो किस ढंग से नापते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि 2 उंगली 3 उंगली का जो मेज़रमेंट लेते हैं कि 2 तक है तो मोतदिल है, इससे ज़्यादा है तो लंबी, इससे छोटी है तो छोटी है, तो ये कोई बात नहीं है। तो इसमें हमने एक किताब का हवाला भी दिया था जो मसीहुल मुल्क की किताब थी, लेकिन हवाला तो मसीहुल मुल्क की किताब से दिया था, लेकिन वो कानून वही है जो जालिनूस ने दुनिया के सामने पेश किया था। और 1800 साल से उसी को पूरी दुनिया के तबीब फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो तकलीद नहीं है फॉलो करना, लेकिन वो तहकीक है, क्योंकि वो साइंटिफिक बात है, अक्ल इसको कबूल करती है। और कोई भी लॉजिकल बात हो जिसको अक्ल कबूल करती हो, साइंटिफिक हो, तो उस बात को एक्सेप्ट करना जो है तकलीद नहीं कहलाती है, वो भी तहकीक का ही एक हिस्सा है। वीडियो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, जिसमें हमने बताया है कि लंबाई जो है 2 या 3 उंगलियों वाला जो सिस्टम है ये पूरा क्लियर किया है। तो खैर, फिर उन साहब ने कहा कि आप बरसों से नब्ज़ इस ढंग से सीखते आ रहे हैं, और इसके अलावा फिर उन्होंने 8-8, 10-10 कमियाँ और बताईं सब नब्ज़ों में, 6 की 6 में। तो समझ में आई हमारी। बोले क्या आप में से किसी के भी जहन में, हज़ारा लोग तकलीदी नब्ज़ें सीख रहे हैं, किसी के जहन में इतना सवाल नहीं आया कि अपने उस्ताद से ये सवाल करें कि उस्ताद मोहतरम, जो आप 2 उंगलियों तक बता रहे हैं कि ये नब्ज़ जो है लंबाई के एतबार से मोतदिल है, तो वो 2 उंगलियां किसकी हों, मेरी हों या इनकी हों या इनकी हों, किसकी 2 उंगलियां हों? भाई मरीज़ तो किसी के भी सामने आ जा सकता है, लेकिन नब्बास की उंगलियां तो सबकी बराबर नहीं होती, किसी की मोटी होती, किसी की पतली होती, किसकी 2 उंगलियां? तो ये कोई इतनी बड़ी अक्ल की बात तो नहीं है जो आपके जहन में अब तक नहीं आ सकी। फिर उन्होंने बताया कि देखिए साबिर साहब को मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, दरअसल बात यह है कि मैंने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, अलग अलग उस्तादों से पढ़ा है, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद में मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं हुआ। बोले देखें, अल्लामा आमली ने मुख्तलिफ़ नब्ज़ की 5,84,430 किस्में बताई हैं, सिर्फ मुख्तलिफ़ नब्ज़ की। वैसी जो नब्ज़ें हैं वो रहीं अलग। बोले क्या कोई ऐसा बंदा है कि 5,84,430
तो सिर्फ मुख्तलिफ नब्ज़ की बताई, एक किस्म की नब्ज़ की। अब इसमें जो बाकी वो अलग हैं, क्या इन नब्ज़ों की कोई 6 नब्ज़ें बना दे, ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। बोले ऐसा होता तो सबसे पहले वो कहने लगे कि हम ही उस तिब को अपनाते। बोले वो चीज़ अक्ल से बिल्कुल परे है। अब उंगलियों की ही आप मिसाल ले लीजिएगा, या जो 6 नब्ज़ें हैं उनमें और भी बहुत सारी उन्होंने कमियां बताई। तो कुल मिला के दिमाग पूरी तरीके से खुल गया और हर बात को जहन ने कबूल किया। हमने बात मानी कि मोहतरम आपकी बात ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो तीनों हम नब्बाज बैठे हुए थे, तीनों ने उस बात को कबूल किया। कुछ सवाल जहन में थे वो भी पूछे, उन्होंने उन हर सवाल का जो है एक साइंटिफिक जवाब दिया, अक़ली जवाब दिया, इल्मी जवाब दिया। बात को घुमाया फिराया नहीं और ये नहीं कहा कि फ़लाँ साहब ने यूँ फरमाया है, फ़लाँ ने यूँ फरमाया है। बजाय इसके कि वो किसी का फरमान सुनाते, फरमान सुनाने के बजाय उन्होंने हमारी हर बात का जवाब एक साइंसी तरीके से दिया। इसलिए जो उस्ताद हैं या उस्तादुल हुक्मा हैं, वो लोगों को इस ढंग से जो नब्ज़े सिखा चुके हैं जो कि गलत हैं। मैं नहीं कह रहा कि जानबूझ के सिखाएं, सहवन ही भला से सिखाई हैं। मैं आपकी नियतों पे शक नहीं कर रहा, नियतें आपकी आप जाने और आपका खुदा जाने क्या है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर ये गलती आपसे हुई है तो जिन लोगों को आपने नब्ज़ें सिखाई हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उन लोगों से मुआफ़ी मांगें। क्योंकि देखिए हुकूकुल इबाद है और जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और हुकूकुल इबाद के मसले आप सब लोग मुझसे ज़्यादा ही शायद जानते होंगे कि आखिरत में इसकी क्या सज़ाएं होती हैं। अगर आपको आखिरत पे ज़र्रा बराबर भी यकीन है तो उन लोगों से माफ़ी मांगें। और बाकी जितने शागिर्द लोग हैं जो नब्ज़े इस तरीके की सीख चुके हैं, तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे उस्ताद लोग माफ़ी मांगें तो आपको चाहिए कि आप उन्हें माफ़ कर दें। देखें, इंसान गलती का पुतला है, गलतियां से भरा हुआ है, गलतियां होती रहती हैं, हमसे भी होती हैं और आइंदा भी होंगी, सबसे होती हैं, सिवाय पैगंबरों के सबसे गलतियां होती हैं। तो कोई माफ़ी अगर मांगता है तो आप माफ़ कर दें। और देखें, आप अगर माफ़ी मांगते हुए अपने आप को छोटा महसूस नहीं करें। ये नहीं सोचें कि आपकी नाक कट जाएगी, आपने बरसों मेहनत करके अपनी इज़्ज़त बनाई है। देखें, वो इज़्ज़त तो है, लेकिन वो इज़्ज़त वो है जिसकी बुनियाद जो है एक गलत चीज़ पर रखी ही है, धोखे वाली चीज़ पर रखी। मैंने ये नहीं कहता कि आपने धोखा किया है, आपको भी किसी से धोखा हुआ है, आपने धोखा खाया है और वैसा कि वैसा ही आपने उस इल्म को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक ऐसी इज़्ज़त जिसकी बुनियाद धोखे वाली चीज़ पर रखी हुई है, तो आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। अल्लाह इस चीज़ पर भी कादिर है कि वो इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त से आपको नवाज सकता है। लेकिन आप सच का साथ दें, सच के साथ रहें, तब इंशाअल्लाह जो इज़्ज़त आपको इस मतलब धोखे वाली चीज़ से अब तक मिली है, उससे ज़्यादा इज़्ज़त आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे ये वीडियो लोगों तक शेयर कर दें, सब लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको लगा हो कि हाँ बात थोड़ी समझ में आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।